Chapati. So today we are going to start chapter 5th of class 5th, Equatorial Forest Region. Which chapter? Equatorial Forest Region. अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन की. तो इसके नाम से ही पता चलता है कि ये वो फॉरेस्ट रीजन होगा जो कहीं ना कहीं किसके पास होगा? इक्वेटर के पास होगा. In my previous 4 videos, I have tell you very clearly that what is equator, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. If you are not knowing, if you are confused, just go back, view all the videos, latitude and longitude, torrid zone video, and then come to watch this video. ओके, सो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन वो फॉरेस्ट रीजन है जो इक्वेटर के दोनों साइड्स पे होता है ना. और ये किस जोन के अंदर आता है? टॉरिड जोन के अंदर आता है. इक्वेटर के दोनों साइड में है, टॉरिड जोन पे आता है. और इस रीजन को हम हॉट एंड वेट रीजन बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म भी है और रोज़ रोज़ यहाँ पर बारिश भी होती है. ओके, I'm going to give you a brief, a little bit introduction of what is equatorial line on Earth. So, suppose when we talk about the Earth, this is what Earth. This is Sun. So, whatever area receiving direct rays of the Sun is called torrid zone. This particular zone is called torrid zone. Which zone? Torrid zone. The extent of torrid zone is 23.5. What? 23.5 north to 23.5 south. Is it clear? So ये जो पर्टिकुलर जोन है इसको हम क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन. ये कहाँ से कहाँ तक होता है? इक्वेटर 0 डिग्री से लेके 23 नॉर्थ टू 23 साउथ. ओके, तो ये वाली लाइन हम इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर. क्लियर है? नाउ अगर हम इक्वेटर की बात करें तो ये जो इक्वेटर है इससे 0 डिग्री इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ वी आर हैविंग इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन. 0 to 5 डिग्री नॉर्थ, 0 to 5 डिग्री साउथ वी आर हैविंग इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन. दिस रीजन लाइज इन टॉरिड जोन प्लस इट इज़ वेरी हॉट एंड वेट. हॉट भी है और वेट भी है. हॉट क्यों है बच्चा? क्योंकि ये इक्वेटर के पास है. और वेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं. बहुत ज़्यादा हॉटनेस होने की वजह से कंटिन्यूस वेपराइजेशन होता है और बारिश होती है. ओके, this is what map which shows where we found equatorial forest region. इस मैप में हम देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन होगा. तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ इक्वेटर. देखो ये रहा इक्वेटर. आर यू एबल टू सी इक्वेटर? ये है इक्वेटर. 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ. इक्वेटर से ये रहा इक्वेटर. इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ वी आर हैविंग इक्वेटोरियल फॉरेस्ट region. Okay, equatorial forest region, and this particular equatorial forest region is lie in South America, Africa and Southeast Asia. If you are not very well aware about the continents, oceans, so just see my first video. Here I am going to show you that this is what? North America, Africa and Southeast Asia. These are the region where we are able to found what? Equatorial forest regions. So when we talk about what? South America, the region includes Ecuador, कोलंबिया एंड ब्राज़ील. इस रीजन में क्या क्या आ जाता है बच्चों? इक्वाडोर, कोलंबिया, इक्वाडोर आ जाएगा, कोलंबिया आ जाएगा और क्या आ जाता है बेटा? ब्राज़ील. रिमेंबर दीज 3 कंट्रीज वेयर वी फाउंड इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन. ब्राज़ील, Ecuador and
Colombia. Okay. So when we talk about what Africa, we are having so many countries in Africa which lies in equatorial forest region. First is Guinea. What? Guinea. Second, Liberia. What? Liberia. Third is Ivory Coast. What? Ivory Coast. And Ghana, Nigeria, Congo. Ghana, Nigeria and Congo. Clear हुई बात? When we talk about Africa, Guinea, Ivory Coast, Ghana, Nigeria, Congo, which lies in this particular zone which is having equatorial forest regions. Now when we talk about which Southeast Asia, so the country lies in Southeast Asia is Malaysia. क्लियर है बेटा? मलेशिया है यहाँ पर, इंडोनेशिया है यहाँ पर. इंडोनेशिया को एक और तरीके से हम जान सकते हैं कि इंडोनेशिया इज़ अ कंट्री विच इज़ हैविंग ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स एंड पार्ट्स ऑफ थाईलैंड. Parts of Thailand, Malaysia and Indonesia, these are the reason where we can easily found equatorial forest region. Okay, so now we come to know about what climate of this region. As I told you, the climate is hot and वेट. इक्वेटर के पास है तो हॉट है, इक्वेटर के पास है तो बहुत ज़्यादा हॉट है. और वेट क्यों है? क्योंकि इक्वेटर के पास है तो वो सारी वाटर बॉडी से कंटिन्यूस एवोपरेशन होता रहता है, तो एयर में क्या आ जाती है? ह्यूमिडिटी आ जाती है. एयर में ह्यूमिडिटी आने का मतलब होता है कि हवा में बहुत ज़्यादा क्या है? वाटर वेपर्स हैं. एयर में किसका कंटेंट बहुत ज़्यादा है? वाटर वेपर का कंटेंट ज़्यादा है, जिससे कि बहुत चिपचिप वाली जो गर्मी होती है वो होती है, तो वो है ना. उसके बाद पानी जब कंटिन्यूस ऊपर जाता है एवोपरेट होके, फिर कंडेंस होके वहीं पे बारिश नहीं लगता है. तो यहाँ पर 4 बजे रोज़ बारिश होती है. क्लियर होगी बात? ये दोनों साइड है इक्वेटर के, तो डायरेक्ट सनराइज इसको मिलती है. एक डे एंड नाइट हमेशा इक्वल डिफरेंस के होते हैं. ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है एयर में कि डेली 4 o'clock पे यहाँ पर क्या होती है? बारिश हो जाती है. क्लियर है? तो हम लोगों ने पहले देखा क्लाइमेट कैसा है? हॉट एंड वेट. एंड आई ऑल्सो गिवन यू द रीज़न वाई इट इज़ हॉट एंड वेट. नाउ अगर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन की बात करें हम, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर भी है, बहुत ज़्यादा हॉटनेस भी है. तो आप लोगों को पता ही है कि जब हमको कोई प्लांट को ग्रो करना होता है तो हमको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? हमको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है किस चीज़ की? सनलाइट की और वाटर की. तो इस बात से आपको पता ही चल गया होगा कि अगर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भी है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, तो प्लांट्स की कैसी ग्रोथ होती होगी? लक्सीरियंट ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स. क्लियर होगी बात? एंड वन मोर थिंग इज़ देयर. These trees grow bear fruits and shade leaves during different times of year. That is why it is called evergreen forest. What? Evergreen forest. Evergreen forest क्यों बोलते हैं? कई जगह ऐसे आपको फॉरेस्ट मिलेंगे जहाँ पर एक ही टाइम पे सारे ट्रीज़ अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, पर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन पे बहुत सारे टाइम में, अलग अलग टाइम स्पेन में प्लांट्स अपने ट्रीज़ को लीव्स को शेड करते हैं, जिससे कि क्या वो जो रीज़न है वो हमेशा हमको कैसा दिखता है? ग्रीन दिखता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एवरग्रीन. क्लियर होगी बात? अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आपको मिलती है एक ऐसे टाइप का फॉरेस्ट जिसमें डिफरेंट वैरायटीज़ हैं. जैसे पहला है फॉरेस्ट फ्लोर. This layer usually has decomposed leaves and fruits that have fallen from upper layer. ऊपर से पत्तियाँ जब गिर जाती हैं, फल जब पक्के गिर जाते हैं, तो वहीं पर वो डिकम्पोज होते रहते हैं और इसको ही हम क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट फ्लोर. क्लियर हुई बात? उसके बाद आता है अंडर स्टोरी. व्हाट? अंडर स्टोरी. दिस लेयर is above forest layer. It consists small trees, shrubs, stones, creepers, orchids. मतलब यहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स हैं,
वो होते हैं, बहुत ही लिटिल सनलाइट मिल पाती है, बहुत उतनी कम भी नहीं जितनी फॉरेस्ट फ्लोर को मिलती है, पर उतनी ज़्यादा भी नहीं जितनी एमरजेंट लेयर को मिलती है। क्लियर हो गया बात? तो फर्स्ट इज़ फॉरेस्ट फ्लोर जहाँ पे डिकम्पोज हो रहा है मटेरियल, सेकंड इज़ अंडर स्टोरी जहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, और अंडर स्टोरी के बाद एक लेयर आती है जिसको हम कैनोपी लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनोपी लेयर। और कैनोपी लेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्रीज़ इतने ज़्यादा आसपास हैं कि जो लीव्स हैं वो अपने आपस में मिलकर क्या तैयार कर लेती हैं? कैनोपी तैयार कर लेती हैं, जिससे कि फॉरेस्ट फ्लोर को बहुत कम सनलाइट मिलती है। सो after under story we are having canopy layer, and after canopy layer there is a layer of very tallest trees and they form emergent layer। ये अंडर स्टोरी के नीचे जितना भी ग्राउंड फ्लोर होगा ना बच्चों, ये ग्राउंड फ्लोर क्या है? फॉरेस्ट फ्लोर। उसके ऊपर होता है अंडर स्टोरी। अंडर स्टोरी में क्या आती हैं? बहुत सारे छोटे छोटे शब्स। फिर कैनोपी लेयर में यहाँ प्लांट ट्रीज इतने पास आ जाते हैं कि ये कैनोपी की तरह एमर्ज हो जाते हैं। और उसके बाद आती है एमरजेंट लेयर। सबसे हाइटेड प्लांट्स ट्रीज क्या बनाते हैं? एमरजेंट लेयर। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा हॉट क्लाइमेट है, वेट क्लाइमेट है, जो कि एक सुटेबल लोकेशन प्रोवाइड करता है काय के लिए लग्जेरियन ग्रोथ ऑफ प्लांट की। तो यहाँ पर जो कंप्लीट फॉरेस्ट है वो बहुत सारी लेयर्स में डिवाइडेड है। फॉरेस्ट फ्लोर हुआ, अंडर स्टोरी हुआ, उसके बाद कैनोपी और एमरजेंट लेयर है। फॉरेस्ट फ्लोर नीचे वाली ज़मीन, उसके बाद छोटे छोटे पेड़ पौधे, फिर कैनोपी लेयर बनेगी और उसके बाद एमरजेंट लेयर बन जाएगी। क्लियर है? After climate and plant life, now we are going to talk about wildlife of equatorial forest region. What? Wildlife of equatorial forest region. बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको प्लांट्स के ऊपर, ट्रीज़ के ऊपर रहना बहुत पसंद होता है। जहाँ पर जितने प्लांट, जितने ट्रीज़ या जितना डेंस फॉरेस्ट होगा, बहुत सारे एनिमल्स वहाँ पर होंगे, ये हम सब लोग जानते हैं। अब यहाँ पर बहुत डेंसली पॉपुलेटेड ट्रीज़ हैं, डेंस फॉरेस्ट है, तो इससे क्या होता है कि इट्स अ नेचुरल हैबिटेट ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स। बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे एम्फीबियंस हैं। एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं और एम्फीबियंस हैं। ठीक है, बर्ड्स, एम्फीबियंस एंड एनिमल्स। मंकी है यहाँ पर, चिंपैंजीज है, फ्लाइंग फॉक्स है, फ्लाइंग स्क्विरल है, जिनको कि ट्रीज़ के ऊपर रहना पसंद होता है। अगर हम वाटर बॉडी की बात करें, एम्फीबियंस की बात करें, तो यहाँ पर क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है, स्नेक है, टर्टल्स है, और जिस स्नैक की हम बात करते हैं, एनाकोंडा स्नैक। विच स्नैक? एनाकोंडा स्नैक। वो भी यहीं पर हमको मिलता है। एनाकोंडा स्नैक भी हमको कहाँ पर मिलता है? अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट में, मीन्स इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन में हमको एनाकोंडा स्नैक भी मिलता है। अगर आप लोगों ने एनाकोंडा स्नैक को नहीं देखा है तो गूगल पे इसको ज़रूर सर्च करें और देखें। क्लियर हो गई बात? फेमस एनाकोंडा स्नैक फाउंड इन अमेज़ॉन बेसिन इन साउथ अमेरिका। कहाँ मिलता है एनाकोंडा स्नैक? कहाँ पर मिलता है? साउथ अमेरिका में। कहाँ मिलता है? साउथ अमेरिका। क्लियर हुई बच्चों बात? So here we can also able to found a large variety of fish, colorful bird, and that colorful bird we are not able to see in India. India में नहीं होता है toucans, hummingbird, parrots, and the type of parrot is very different from that parrots we are having in India. Macaw, hummingbird, parrots, toucans, these all the bird variety we can easily found on equatorial forest region. This is what? flying fox. ये क्या है? flying fox है, जो हमारे इंडिया में नहीं होती। हमारे इंडिया में फॉक्स होता है पर वो फ्लाइंग फॉक्स नहीं होता है। क्रोकोडाइल तो इंडिया में भी होता है। मकाओ हमारे यहाँ पे बहुत ही कम, रेयरली देखने को मिलता है, पर ये आपको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन में इजीली देखने को मिल जाएगा। क्लियर? सो क्लाइमेट वी हैव डन, प्लांट लाइफ डन, एनिमल लाइफ डन, नाउ कम टू ह्यूमन लाइफ। जो इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है, जिससे ह्यूमन सेटलमेंट बहुत ज़्यादा वहाँ पर नहीं होते हैं। क्योंकि हमको भी पता है हम जंगलों में जाके रहना पसंद नहीं करेंगे। क्यों पसंद नहीं करेंगे जंगलों में जाके रहना? क्योंकि हमको पता है कोई भी एनिमल आके हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। तो वहाँ पर बहुत कम ह्यूमन लाइफ है। साथ में जब मैंने आपको बताया था कि जो फॉरेस्ट फ्लोर है
वो वहाँ पर सनलाइट बहुत कम होती है, डिकम्पोज मटेरियल ज़्यादा होता है, दलदली ज़मीन होती है। उससे क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारे मॉस्किटो होते हैं और मलेरिया वहाँ की बहुत कॉमन इलनेस है। मलेरिया इज़ द वेरी कॉमन इलनेस ऑफ दिस रीजन। देन टू सम ट्राइब्स हैं जो वहाँ पर रहती हैं, सिमांग्स ऑफ मलेशिया। फर्स्ट ट्राइब इज सिमांग्स ऑफ मलेशिया, क्यूबस ऑफ सुमात्रा, पैजमीज ऑफ कॉन्गो बेसिन आर द नोमेडिक ट्राइब हु स्पेंड देयर लाइफ हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग एंड गैदरिंग का मतलब क्या होता है, हंटिंग जानवरों को मारना, हंटिंग मीन्स जानवरों को मार के खा जाना, और गैदरिंग मीन्स वहाँ पर जो भी अवेलेबल फूड्स हैं उनको गैदर करना और उससे अपनी लाइफ को स्पेंड करना। क्लियर होगी बात। तो वहाँ पर जितनी भी, जैसे हमने बोला है कि सिमांग्स हैं या क्यूबूस हैं या पैजमीज हैं, तो ये वहाँ पर रहते हैं। तो कुछ इनमें से क्या करते हैं, हंटिंग, और कुछ क्या करते हैं, गैदरिंग। हंटिंग मतलब जानवरों को मारना, गैदरिंग मतलब वहाँ पर जो भी एडेबल फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, उनको इकट्ठा करना और खाना, उसी पे अपना लाइफ को बेस्ड रखना। अदर सच इज डयाक्स ऑफ बोर्नियो, बंटूज ऑफ ज़ायरे, अमेजोन इंडियंस, वहाँ की फार्मिंग कम्युनिटीज़ हैं। अगर हम वहाँ की नोमेडिक ट्राइब की बात करें तो क्यूबिस ऑफ सुमात्रा, पैजमीज ऑफ कॉन्गो बेसिन, सिमांग्स ऑफ मलेशिया, ये सब नोमेडिक ट्राइब हैं। पर वहाँ पर कम्युनिटी फार्मिंग भी होती है, और कम्युनिटी फार्मिंग करने वाले कौन होते हैं, डयाक ऑफ बोर्नियो, बंटस ऑफ ज़ायरे एंड अमेजोन इंडियंस। ये कुछ ऐसे हैं जो वहाँ पर क्या करते हैं, जो वहाँ पर फार्मिंग करते हैं, मतलब नोमेडिक ट्राइब भी, और वहाँ पर फार्मिंग भी होती है। अब वहाँ पर जो फार्मिंग होती है, वहाँ पर 2 टाइप की फार्मिंग होती है। पहली होती है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और दूसरी होती है प्लांटिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड बेटा प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होती है, ये आपकी फर्दर क्लासेस में भी आप पढ़ोगे, फिर मैं बता देती हूँ। जंगलों के एक बहुत बड़े हिस्से को जलाकर साफ़ किया जाता है। इसको जला के साफ़ करने के बाद यहाँ पर जो ऐश, पेड़ जलने के बाद जो मिट्टी या जो राख बचती है, उसको यहीं पर रहने दिया जाता है, और फिर इसके ऊपर वो लोग क्या करते हैं, खेती, फार्मिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वो खेती करते हैं ओनली 2 to 3 ईयर्स, क्योंकि उन लोगों के पास कोई नेचुरल फर्टिलाइज़र या उनको पता नहीं होता फर्टिलाइज़र क्या है, या कोई केमिकल फर्टिलाइज़र की उनकी रीच नहीं होती है। तो व्हेन दे फार्म फॉर एटलीस्ट 2 to 3 ईयर, ये जो ज़मीन है ये क्या हो जाती है, एग्जॉस्ट होने लगती है, उसकी फर्टिलिटी ख़त्म होने लगती है। तो उस जो प्रोड्यूस होता है वो कम होता है, तो वो उस जगह को छोड़ के फिर किसी दूसरी जगह पे एक बड़े पैच को जलाने लग जाते हैं। तो जो भी पैच वो जलाते हैं उसको सिर्फ 2 से 3 साल ही यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या है। व्हाट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर? अंडर दिस सिस्टम दे क्लियर अ पीस ऑफ लैंड बाय बर्निंग, देन दे ग्रो क्रॉप्स ऑन द लैंड फॉर 2 to 3 years. After which the fertility of land diminishes and they move to new areas. Very easy. क्लियर है? 2-3 साल एक जगह पे खेती करेंगे, फिर देखेंगे फर्टिलिटी ख़त्म होती जा रही है, तो दूसरी जगह एक और पैच को वो जला देंगे और लैंड को टेबल लैंड बना लेंगे। ये ऐसी ट्राइब्स होती है वहाँ पर। ओके, ये बंटू ट्राइब है, ठीक है। मतलब लोगों का जो रहना सहना होता है वो हमसे बहुत अलग होता है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंडीशंस हमसे बहुत अलग होती हैं। अभी मैंने बताया कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या है, अब हम देखते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है। व्हाट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर? तो जहाँ पर भी प्लांटेशन एग्रीकल्चर की बात होती है ना बच्चा लोग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर हर जगह किसने इंट्रोड्यूस किया है? यूरोपियंस ने। यूरोपियंस में डच भी आएंगे, तो इंग्लैंड भी आएगा, तो इटली भी आएगा, तो फ्रांस भी आएगा। इन सब लोगों ने जहाँ जहाँ पर अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी वहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस किया था? प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो किस किस का प्लांटेशन होता है यहाँ पे? टी, कॉफ़ी, रबर, कोकोआ जो आपको चॉकलेट बहुत पसंद है वो कैसे बनती है? कोकोआ से बनती है। रबर, जितना भी रबर का यूज़ हम करते हैं वो सारी रबर यहीं से बनती है। टी और कॉफ़ी तो बहुत अच्छे से आप लोग जानते ही होंगे। और ये किसने इंट्रोड्यूस की थी? यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस की थी। तो यहाँ पर होता है ये चैप्टर ख़त्म। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें और उस डाउट को क्लियर करें। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती रिलेटेड टू व्हाट इज़ इक्वेटर, 0 डिग्री क्या है, 5 डिग्री क्या है, तो फर्स्ट 2 वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखें। एक तो कॉन्टिनेंट्स वाला और दूसरा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। ओके, तो इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने वाली बात क्या थी कि इक्वेटोरियल रीजन कहाँ पर लोकेटेड है। हमने बताया 0 to 5। क्लाइमेट कैसा है? तो क्लाइमेट कैसा है? हॉट एंड वेट। क्लियर होगी बात।
फिर हमको एक चीज़ और बतानी है कि प्लांट लाइफ कैसी है, तो प्लांट लाइफ लग्जीरियंट ग्रोथ है। फिर एनिमल लाइफ, क्योंकि प्लांट बहुत ज़्यादा है तो एनिमल बहुत ज़्यादा होंगे। लिविंग कॉलोनीज़, मतलब बहुत कम लोग वहाँ पर रहते हैं, जो रहते हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ ट्राइब्स वहाँ पर हैं। कुछ ट्राइब्स क्या करती हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग, और कुछ ट्राइब्स क्या करती हैं, फार्मिंग। क्लियर है।